Hi friends, in this session on continuation of chapter number 9, today's session will start with the IUPAC. Means how can you give the name of complex compound? So there are two types of complex. One is cationic, another is anionic. So there are some rules for it. So let's start with the naming of mononuclear coordination compounds. The names of coordination compound are derived by this following principle of this additive nomenclature. Thus, the groups that surround the central atom must be identified in a name. They are listed as the prefix to the name of the central atom along with any appropriate multipliers. The following rules are used. First, the cation is named first both for positive and negative coordination entities. So सबसे पहले क्या याद रखना है आपको? The cation is named first in both positive and negative charge coordination entities. The ligands are named in an alphabetical order. Most important, ligands are named in alphabetical order. Before the name of the central atom, this procedure is reversed from writing the formula. Perfect. Writing the formula के लिए अलग से कुछ रूल्स है, वो जब भी हम डिस्कस करेंगे तब करेंगे. राइट नाउ आपको नेमिंग करना है. आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया होगा, उसका नेम देना है आपको. द नेम्स ऑफ दिस एनायनिक लिगैंड एंड इन O. Once again, name of this anionic ligand and in O. Those of this neutral and cationic ligand are same except aqua for H2O. Name of H2O is aqua. Amine for NH3. Carbonyl for CO. Nitrosyl for NO. इसके लिए भी हमने प्रीवियस सेशन में लास्ट 10 मिनट डिस्कशन किया था ligands and their name. तो वो एक बार अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा. देन एंड देन यू गो फॉर दिस आर प्लेस्ड विद इन द एनक्लोजिंग मार्क ऑफ दिस प्रीफिक्स. इफ इट इज 1 देन मोनो, इफ इट इज 2 देन डाई, 3 तो ट्राई एंड एक्सेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगैंड्स in the coordination entity. When the names of ligands include a numerical prefix, then the term bis, tris, tetrakis are used. Means ligand के अंदर ही अगर नंबर आ रहा है, जैसे इथेन 1,2 डायामाइन, तो अगर ये स्पीशीज 2 टाइम्स है तो 2 बार डाई तो यूज नहीं कर सकते. डाई इथेन 1,2 डायामाइन, तो लिटिल बिट कंफ्यूज्ड. मीन्स वंस अगेन फिर से एक बार पढ़ लीजिए. व्हेन द नेम ऑफ लिगैंड्स इंक्लूड न्यूमेरिकल, मीन्स लिगैंड के नेम के अंदर ही अगर न्यूमेरिकल आ रहा है 1 2 1 3 1 2 3, देन अगर ऐसे लिगैंड 2 बार है तो बिस, 3 टाइम्स है तो ट्रिस एंड 4 टाइम्स इट टेट्राकिस. The ligand which they refer being the placed in parenthesis. For example, NiCl2 PPH3 twice is named as chlorine 2 times है तो that is called dichloro. Why dichloro? Here in case देखिए, name of anionic ligand end with O, so that's why it's a chloro. Then PPH3 twice का मतलब क्या होगा? This is phosphorus PH3, so that is bis. Why bis? Just because it is 2 times. Triphenyl phosphine. PH का मतलब फिनाइल, सेंटर पार्ट पे फॉस्फोरस है, तो when phosphorus is associated with 3 phenyl ring और ये पूरा का पूरा 2 times है, so that's why it's a bis. Then in bracket triphenyl phosphine. Then it is nickel and oxidation state is 2. कैसे? This is neutral 0, chlorine का -1, तो that is 2 into -1, x is equal to 0, x is equal to 2. So that's why each and every
मेटल के पीछे जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो रोमन लेटर में आएगा। नेक्स्ट वही रूल पढ़ रहे हैं हम, रूल नंबर 5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल इन कैटायन, anion or the neutral coordination entities is indicated by Roman numeral in parenthesis। means metal के पीछे whatever the oxidation state वो रोमन लेटर में लिखना पड़ेगा, that is in parenthesis। if the complex ion is a cation then metal is named as it is। important one, if complex is an cation then metal named is as it is। for example, CO in a complex of cation is called cobalt, platinum is called platinum। but if complex is an anion, the name of this metal and with suffix ate, it, तो कोबाल्ट के पीछे हो जाएगा कोबाल्टेट। फाइन, इस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। निकल के पीछे हो जाएगा निकलेट। फॉर एग्जाम्पल, CO in complex anion is called cobaltate, nickel, nicolate। For some metals, the Latin names are used in complex anion, that is Fe, SCN64-2, that is Fe is ferret। लेटिन नेम भी प्रीवियस सेशन के अंदर जब लिगैंड का डिस्कशन किया था वहां पे भी मैंने ये आपको पढ़ाया था, वो अच्छे से देख लीजिएगा। द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल is named similar to that of this complex cation। and now we'll start with some example। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको इजी हो जाएगा। वंस अगेन यहाँ तक का वीडियो कम से कम 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा। रूल्स टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिए हैं, इट शुड बी वर्ड बाय वर्ड, तो आप अच्छे से एक बार रूल्स फिर से पढ़ लीजिएगा, फिर एक एक करके हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। लिगैंड के लिए ये टेबल प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था, एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दिस इज फर्स्ट न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कौन कौन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल है? बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, पॉलीडेंटेड है, किस हिसाब से है? दिस इज योर टेबल नंबर 1। देन यू हैव टेबल नंबर 2 and 3। टेबल नंबर 2 हैविंग एनायनिक स्पीशीज, दैट इज फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ऑल, देन नाइट्रो, नाइट्रेटो, ऑक्सो, ऑक्सलेटो एंड मेनी मोर, एंड दिस आर द फ्यू लैटिन नेम्स। तो ये सारे के सारे टेबल प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छे से डिस्कस किए थे, एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीज अगर आपको पता चल रही है देन एंड देन वी कैन स्टार्ट विथ नेमिंग ऑफ IUPAC। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। सबसे पहले आपको ऐसा कुछ दिया होगा, दैट इज Cr, NH3 थ्राइस, देन H2O थ्राइस, बाहर Cl3। बाहर Cl3 का मतलब क्या हुआ? दिस कॉम्प्लेक्स हैविंग +3 चार्ज दैट कैन बी न्यूट्रलाइज विद दिस Cl3। वंस अगेन ये Cl3 क्यों आया? जस्ट बिकॉज कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज होगा दैट कैन बी न्यूट्रलाइज विद दिस Cl3। इसका नेम है ट्राइअमाइन ट्राइएक्वा क्रोमियम। सर वाई क्रोमियम? जस्ट बिकॉज इट्स अ कैटायनिक स्पीशीज। रूल्स के अंदर हमने पढ़ा, अगर कैटायन हो तो मेटल का नाम हैज इट इज लिखिए, जो अगर एनायन है तो पीछे हम ATE लगाएंगे। हियर इन केस इट इज अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, इसलिए क्रोमियम हैज इट इज रहा, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 कहां से आया? जस्ट बिकॉज Cl3 है, इसीलिए 3 क्लोराइड। क्लोराइड के पीछे आप कभी नहीं लिखोगे ट्राई क्लोराइड और ट्रेस क्लोराइड, सिंपल दिस इज क्लोराइड। अगर वो 2 टाइम्स है 3 टाइम्स है डजंट मेक एनी डिफरेंस, सिंपल आपको लिखना है क्लोराइड। तो किस हिसाब से नेमिंग किया हमने, देखिए सारे के सारे रूल हमने फॉलो किए। अमाइन 3 टाइम्स है तो इसीलिए ट्राइअमाइन, H2O 3 टाइम्स है इसीलिए ट्राइएक्वा। वी ऑल्सो फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दोनों A से स्टार्ट हो रहे हैं, बट दिस इज AM एंड दिस इज AQ। That's why AM comes first and AQ comes later on. Triamine, triaqua, once again it's a cationic complex, that's why it's a chromium 3 and chloride। इसका जस्टिफिकेशन वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ, देखिए एक्सप्लेनेशन किस हिसाब से नेम किया। तो कॉम्प्लेक्स आयन इन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट विच इज अ कैटायन। कैसे पता चल गया सर विच इज अ कैटायन? जस्ट बिकॉज ब्रैकेट के बाहर Cl3 है,
ये Cl3 तब भी आया होगा जब ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज हो तो। द अमाइन लिगेंड्स आर नेम्ड बिफोर द एक्वा। Why? Because we have to follow the alphabetical order. Since there are 3 chloride ions in the compound, the charge on complex must be +3. ये Cl3 है, ये Cl3 क्यों आया? Just because 1 Cl having -1, तो 3 Cl3 का मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज होगा, that can be neutralized with this Cl3. That's why since compound is electrically neutral. Electrical means कोई चार्ज नहीं है ना, that's why it's electrically neutral. From the charge on the complex ion, the charge on the ligand, we can calculate the oxidation number of metal. NH3 and H2O दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो चार्ज किसका हो गया? Cl3 की वजह से +3. Therefore, the oxidation number of chromium must be the same as the charge on complex, that is +3. That's why you get this name. Second example discuss करते हैं, that is CO, NH2, CH2, CH2, NH2 3 times, whole bracket twice, SO4 thrice. So this is ethane 1,2 diamine. अब इसी के अंदर 1,2 नंबर आ रहा है और वो 3 टाइम्स है, एंड पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स 2 टाइम्स है, समझिए. सो दिस इज ट्रिस. व्हाई ट्रिस सर? जस्ट बिकॉज दिस इज 3 टाइम्स. ट्रिस इथेन 1,2 diamine, 3 times NH2 CH2 CH2 NH2. So that's why it's a tris ethane 1,2 diamine, bracket complete. Then cobalt once again. Why only cobalt? Because बाहर SO4 thrice है. ये SO4 thrice कब आया होगा? जब इसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तब. That is cobalt 3 sulfate. Perfect. So this is all about your name. Name कैसे आया? Explanation पढ़िए. The sulfate is the counter anion in the molecule since it takes 3 sulfate to bond with this 2 complex cation. तो this is 2, this is 3. तो total कितना हो जाएगा कोबाल्ट के ऊपर चार्ज? 3. Each charge on complex must be +3. Further, ethane 1,2 diamine is a neutral molecule. So ये तो neutral ligand है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होगा. So the oxidation number of cobalt must be +3. Remember that you never have to indicate the number of cations and anions in the name of ionic compound. So these are the 2 explanation. अब सबसे पहले मोनोटोनस स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले ओनली एंड ओनली एनायनिक के कुछ कॉम्प्लेक्स के नेमिंग करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा. फिर कैटायन की प्रैक्टिस करेंगे. So let's start first few anion complex naming. K4 NiCN4. अब आगे K4 क्यों आया? Just because there is a -4 charge on NiCN4. Perfect. So that's why there is a -4 charge. That's why here we have a K4. So that's why it's a potassium tetracyano निकलेट. निकलेट क्यों? क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एलिमेंट के पीछे ATE सफिक्स लगेगा. So that's why potassium tetracyano निकलेट 0. अब 0 कैसे आ गया सर? Cn has -1 charge. So x plus 4 into -1 is equal to -4. सर -4 कैसे आया? क्योंकि K4 है. परफेक्ट. So let's start. ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ढूंढा? 4 into +1 that is for K. Ni का अज्यूम करना है, that's why it's x, and 4 into -1. So that is 4 into +1 plus x plus 4 into -1 is equal to 0. That's why x is equal to 0. NH4 twice COCl4. NH4 once again 2 into +1. कोबाल्ट का ढूंढना है, that's why it's x. Plus chlorine is -1, तो 4 into -1 is equal to 0. X is equal to +2. K3 FeCN6. 3 into +1 plus x plus 6 into -1 is equal to 0. That is x is equal to +3. So ये 1, 2, 3 के ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट किया वो पता चल गया. नाउ नेमिंग स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट पोटेशियम.
डाई टाई टेट्रा कुछ नहीं लगेगा, सिंपल पोटेशियम। देन लिगेंड एक ही है, होमोलेप्टिक स्पीशीज 4 टाइम्स CN, दैट इज टेट्रासाइनो। एनायनिक स्पीशीज है इसीलिए एनआई के पीछे टी लगेगा, दैट इज निकलेट 0। दूसरा नाम आप खुद से ट्राई कीजिए, दैट इज अमोनियम टेट्राक्लोरो कोबाल्टेट 2। थर्ड भी आप ट्राई कीजिए, दैट इज पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3। नाउ 4 5 6 7। फोर्थ सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढिए, दैट इज 3 into +1 + x। फ्लोरीन इज -1, तो 6 into -1 is equal to 0, that is x is equal to +3. So that is sodium hexafluoro aluminate 3, that is NaCrOH4. Once again Na 1 into +1, Cr का ढूंढना है, that's why it's x। OH -1, तो that is 4 into -1 is equal to 0, x is equal to +3। सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो क्रोमेट 3। KVH2O 2 times, Br2 4 times। H2 इज न्यूट्रल स्पीशीज, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, Br का -1 होगा, तो 1 into +1 वेनेडियम का ढूंढना है, इसीलिए x। 4 into -1 is equal to 0, जस्ट बिकॉज H2O का चार्ज नहीं होगा, इट्स न्यूट्रल स्पीशीज। ब्रोमीन का चार्ज -1, तो x is equal to +3। नेमिंग पोटेशियम डाइएक्वा टेट्राब्रोमो वेनेडेट 3। एक और प्रैक्टिस करते हैं, Na3CONO2 6। 3 into +1 कोबाल्ट का ढूंढना है, इसीलिए x। 6 into -1 is equal to 0, x is equal to +3। that is sodium hexanitro cobaltate 3। so this is all about your एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। अब ऐसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। Now let's start with a few cation complex name। CONH35ClBr2। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट सीख लीजिए कैसे करना है, that is x plus 5 into ammonia is neutral, that's why it's a 0, plus chlorine is -1, 1 into -1, bromine is -1, that 2 into -1 is equal to 0, x is equal to +3। नाउ नेमिंग कैसे करेंगे, हियर इन केस ATE नहीं लगेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से स्टार्ट कीजिए। Cl क्लोरो, दिस इज अमाइन, तो अमीन ऑब्वियसली पहले आएगा, कितनी बार है 5 टाइम्स, तो दैट इज पेंटामाइन सिंपल क्लोरो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। वेरी इजी। CrH2O 4 टाइम्स Cl2Cl, तो x + 4, H2O तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0, Cl2 2 into -1 plus 1 into -1 is equal to 0, x is equal to +3। This is start from aqua, this is chloro, तो aqua comes first, कितनी बार है 4 बार, तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड। Pt NH3 twice Cl2, Pt x neutral molecule 2 into 0, Cl2 2 into -1 is equal to 0, x is equal to +2, so that is diamine platinum 2 chloride। CrH2O6 NH3 thrice, chromium is x, neutral molecule 6 into 0, NO3 -1, तो 3 into -1 is equal to 0, x is equal to +3। hexa aqua chromium 3 nitrate, FeNH36 SO4, that is x plus 6 into 0 plus 1 into -2, SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो x is equal to +2। hexaamine iron 2 sulfate, COPPH3 3 times, whole 4 times, bracket 2 times, means 4 times PCH3 thrice है, तो that is tetrakiss, क्यों, क्योंकि 4 बार है। फॉस्फोरस के आसपास क्या है, ट्राइमिथाइल, दैट इज ट्राइमिथाइल फॉस्फिन। वंस अगेन PPH3 3 टाइम्स, फॉस्फोरस के साथ मिथाइल 3 टाइम्स है, और ये पूरी स्पीशीज 4 टाइम है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ टेट्राकिस ट्राइमिथाइल फॉस्फिन कोबाल्ट 3 सल्फेट। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे किया सर, तो 2x, why 2x, जस्ट बिकॉज पूरा कॉम्प्लेक्स 2 टाइम्स है।
4 इंटू 0, ये पूरा न्यूट्रल स्पीशीज है, इस वाई 0, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +3, AlH2O4 OH2 Cl, ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस 4 इंटू 0, एक्वा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, OH के ऊपर -1, तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0. So tetra aqua dihydroxo aluminium 3 chloride. So this is all about your IUPAC name. So ये पूरा का पूरा सेशन 2 बार देख लीजिएगा. नेक्स्ट सेशन ओनली एंड ओनली IUPAC नेमिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं. So this is all about your today's session. Thank you so much.